ذکر استغفار کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بہت زیادہ کمالات ہیں اور بہت بڑے بڑے معجزات ہیں۔ آج کل ہر مسلمان پریشان ہے، ہر بندہ پریشانی سے سرشار ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یا پھر کسی کے پاس بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان اس دنیا میں بے یار و مددگار ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات کا حل صرف اور صرف ایک ذکر کے اندر رکھا ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ بہت ساری پیاری بہنوں کے کمنٹس آ رہے تھے، آپی ہم نے اتنے دن استغفار پڑھا ہے لیکن ہمیں اثر نہیں ہو رہا، آپی ہم نے اتنے مہینے سے استغفار کیا ہے لیکن ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ زبردست واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ استغفار کا اثر دیر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ جلدی اور کبھی بہت زیادہ وقت کے بعد، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ بندے کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ استغفار جاری رکھے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کبھی تاخیر ہوتی ہے، کبھی تاخیر آزمائش ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے، کبھی گناہوں سے معافی یا کسی بڑے نقصانات سے حفاظت ہوتی ہے، اور دنیاوی نعمت سے بڑھ کر بڑی نعمت عطا ہوتی ہے۔ اگر انسان استغفار کے ساتھ توبہ اخلاص اور جائز اسباب اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بندی جو ہے وہ بہت زیادہ کسی چیز کی اس کو طلب تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی، یا اللہ تو میری کیوں نہیں سن رہا، میں اتنی راتوں کو اٹھتی ہوں اور اتنی راتوں سے جاگ کر یا اللہ پاک میں تجھ سے ایک چیز شدت کی طلب کے ساتھ مانگ رہی ہوں، گڑ گڑا کر مانگ رہی ہوں، رو کر مانگ رہی ہوں، یا اللہ تو میری کیوں نہیں سنتا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ پاک تیری بندی اتنا رو رہی ہے، اتنا تڑپ رہی ہے، تو اسے وہ چیز عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، میں اسے وہ چیز عطا تو کر دوں، لیکن کیا اس چیز کے ملنے کے بعد میری یہ بندی میرے سے دوبارہ ملنے آئے گی؟ اس طرح وہ میرے آگے تڑپے گی یا روئے گی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان جائیں۔ بعض اوقات ہم لوگ دنیاوی مال و آسائش ہمیں اتنا مل جاتا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے ملنے کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے آپ امیر لوگ دیکھ لیں، بہت زیادہ جن کے پاس مال و دولت ہے، تلاوت قرآن پاک تو دور کی بات، وہ لوگ نماز تک بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کو دینے پر قادر ہے کیا وہ چھین نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے حالات بہتر ہوں تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی ہمیشہ دعا کا طلبگار رہتا ہے کہ میرا بندہ بس میرے آگے رہے، میرے آگے روتا رہے، تڑپتا رہے، مجھ سے مانگے یا پھر میرے پاس رہے۔ تو ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، خوشیاں ملیں تو ہم جیسے کوئی فنکشن آ گیا، ہم لوگ ایون دیٹ کے سجدہ وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ خوشیوں کی راتوں میں یا بہت زیادہ خوش ہوں ان راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ تو خوشی میں شکر الحمدللہ کہنا مت بھولیں، اور دکھ میں اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کرنا مت بھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر لحاظ سے آزماتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بحری جہاز کا ایک پائلٹ ہوتا ہے جو کہ ٹاپ آف دا فلور کھڑا ہوتا ہے، اور نیچے باٹم پہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ بحری جہاز کے پائلٹ کے ہاتھ میں بہت سارے نوٹ ہوتے ہیں، 100 کا، 200 کا، اور 500، 1000، 5000 کے نوٹ۔ پہلے وہ پائلٹ جو ہے 100 کا نوٹ پھینکتا ہے، اور نیچے کھڑا ہوا شخص اس کو جب نوٹ ملتا ہے تو وہ اوپر نہیں دیکھتا اور بس آرام سے اس نوٹ کو اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح سے وہ 200 کا نوٹ پھینکتا ہے، پھر وہ شخص وہی کرتا ہے کہ اوپر نہیں دیکھتا اور 200 اٹھا لیتا ہے، پھر وہ 500 کا اس طرح پھینکتا ہے، اس طرح 1000 کا، لیکن ہر بار اس شخص کا رویہ جو ہے وہ سیم رہتا ہے، جو نیچے باٹم پہ کھڑا ہوتا ہے شخص۔ پھر وہ آخر 5000 کا نوٹ پھینکتا ہے،
फिर वो शख्स वही 5,000 का नोट उठाकर चला जाता है, लेकिन ऊपर करके नहीं, ऊपर खड़ा हुआ नहीं देखता कि कौन ये नोट फेंक रहा है, किस तरह से। तो 5,000 के नोट फेंकने के बाद वो बहरी जहाज़ जो है अब नोट फेंकना बंद कर देता है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम लोगों की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह ताला हमें दुनियावी मालो दौलत बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा नेमतें दे रहा होता है, लेकिन हम अल्लाह ताला के यहाँ सरबसजूद होकर सजदा शुक्र ही अदा नहीं करते। जैसे वो बंदा नीचे खड़ा था, ऊपर देख लेता कि उसको कोई जो नोट फेंक रहा है उसका कम से कम शुक्रिया ही अदा कर देता, तो वो खुशी में पायलट 5,000 के डबल ट्रिपल नोट फेंक देता। तो इससे सबक हमें ये मिलता है कि हम इंसान दुनियावी चीज़ों के आने पर जो चीज़ हमें शिद्दत से तलब चाहिए होती है, चीज़ अक्सर मिल भी जाती है, तो हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। उस शुक्र ना अदा करने की वजह से हमसे मज़ीद नेमतें जो हैं वो हमें मिलना बंद हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गाफिल हो जाते हैं। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मसला पता कहाँ आता है, हम लोग दूसरों की ज़िंदगी की तरफ देखते हैं, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास वो नहीं है। चले एक औलाद की मिसाल लेते हैं। एक औरत जो है वो कहती है कि मेरे पास औलाद नहीं है, फ़लाँ के पास औलाद क्या। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है, मैं जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ बेटी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, तो जिसे चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है। और इसी तरह से रिज़्क़ की तकसीम है। कभी किसी के रिज़्क़ पर देकर हसद नहीं करनी चाहिए। आपका रिज़्क़ आपके नसीब का, मेरा रिज़्क़ मेरे नसीब का। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए रिज़्क़ की तकसीम मुख्तलिफ रखी है। अल्लाह ताला ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता तो आपको नहीं देता। बाज़ औक़ात हमारी गलतियाँ होती हैं, हमारे गुनाह होते हैं, हमारी ही गफलत होती है, हम उस तरह से शुक्र नहीं अदा कर पाते, जिस वजह से हमें वो नेमतें नहीं मिल रही होती। तो सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। कुरान पाक में लिखा है, अगर तुम ज़्यादा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो ये कुरान पाक में अल्लाह ताला के सच्चे वादे हैं। तो अगर हम ज़िंदगी में शुक्र को अपना लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेमतें मिल जाती हैं। अगर इंसान इस्तग़फ़ार को सही मानों में करने वाला बन जाए तो सारी की सारी दुनिया उसके कदमों में आ जाएगी। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है, आकर मुझे फाके पड़े हुए हैं, मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, मेरी भूख से औलाद बिलक रही है, तो मुझे बताएं मैं क्या अमल करूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला की नेमतें मिले। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर अस्तग़फ़िरुल्लाह करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह किस तरह से करना है कि फ़जर की नियतों के बाद और फ़र्ज से पहले 100 मरतबा ज़िक्र इस्तग़फ़ार कर लेना है। इस तरह से करना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह। फ़र्ज़ों से पहले और सुन्नतों के बाद आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लिया। कुछ दिनों के बाद जो है वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होता है और तोहफ़े तोहाइफ़ लेकर आता है और इतना खुश होता है और रो रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अब बेहद नवाज दिया। इस तरह अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ात होते हैं, बेशक होती हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन रखते हैं, सब्र नहीं छोड़ते, शुक्र का दामन नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। तो मुअज़्ज़े उन्हीं के लिए होते हैं जो अल्लाह ताला से सच्ची उम्मीद लगाए रखती हैं। सूरत मरियम हमें सिखाती है कि जब इंसान का यकीन अपने रब पर मजबूत हो और आगे मंजिल का पता भी ना हो ना, तो रास्ते का तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाकर भेज देता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, चाहे हर तरफ कितनी मुसीबतें क्यों ना घिर लें। तो हमें कुरान पाक एक पूरी मिसाल है। कुरान पाक में सब्र, शुक्र, हर चीज़ का बताया गया है। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है और ज़िक्र इस्तग़फ़ार को तो हद से ज़्यादा बयान किया गया है। इन सारे वाक़यात से हमें एक ही सबक मिलता है कि हमें इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ना। जिस तरह हमने उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी तरह से हमने ज़िक्र इस्तग़फ़ार को ज़िंदगी में ऐड करना है। ना कि हमने ये बात करनी है कि हम इतने दिन पढ़ लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, इतने महीने कर लेंगे तो हमारा मसला होगा। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह को ज़िंदगी में मुस्तकिल ऐड करने से आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे मौजज़ात होंगे। आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और आप मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएंगे कि अल्लाह ताला ने आप सब पर कितना करम कर दिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे भी मुश्किलात से निकाला है। इस ज़िक्र इस्तग़फ़ार की बदौलत अल्लाह ताला आप सबको भी निकाले, अल्लाह ताला हमारी आज़माइशें दूर करे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो इस्तग़फ़ार को
दिनों के लिए नहीं पढ़ना, महीनों के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए पढ़ना है। और जब हम इस्तग़फ़ार के साथ शुक्र करने वाले बन जाते हैं, हम सब्र करने वाले बन जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या होना शुरू हो गया है। तो ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है। सूरत नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इस्तग़फ़ार के ज़रिए ना सिर्फ मैं तुम्हें बख्श दूँगा, बल्कि औलाद की नेमत दूंगा, माल की नेमत दूंगा, रिज़्क़ की नेमत दूंगा, बागात अता करूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला का वादा बेशक सच्चा है। तो हमें सिर्फ समझने की यही ज़रूरत है कि हमने मायूस नहीं होना, हमने घबराना नहीं है। चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, हमने शुक्र का दामन नहीं छोड़ना, हमने दूसरों की ज़िंदगी की तरफ नहीं देखना। हमने अल्लाह ताला ने जो हमारे हिस्से में रिज़्क़ लिखा है, हमारे लिए नेमतें जो लिखी हैं, जो हमें नेमतें प्रोवाइड हो रही हैं, उन पर हमने सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखना है। उन लोगों को देखें जो माजूर हैं, उन लोगों को देखें जो बाहर गर्मी में रेड़ी लगाते हैं, उन लोगों को देखें जो घर में काम कर रही होती हैं गर्मी में, और हम लोग अंदर कमरों में बैठे होते हैं ठंडे कमरों में। तो उन लोगों की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें कि अल्लाह ने आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया हुआ इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में। अल्लाह ताला का हर पल शुक्र अदा किया करें। अपने से ऊपर वाले लोगों को मत देखा करें, देखना है तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखें ताकि आप शुक्र करने वाले बने। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की भी मदद फरमाए। अल्लाह पाक कभी किसी को भी किसी चीज़ का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हमेशा अपना मोहताज रखे, किसी के आगे कभी भी किसी को हाथ ना फैलाने पड़े। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो आज की ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।